They are the worst kind of people. अरविंद केजरीवाल को मैं क्या समझती थी, मैं राखी बांधती थी अर्जुन. They are such terrible, mean, petty people, unscrupulous, ruthless हैं ये लोग. सबके सब मतलब एक दूसरे से भी चिढ़ते हैं, एक दूसरे पे डॉसियां रखते हैं. They were corrupt to the hilt. They were playing games. They were ruthless, misogynistic. मैं क्या बोलूं? अन्ना हजारे को बहुत बेवकूफ बनाया, देश को बेवकूफ बनाया, हम सब लोग को बेवकूफ बनाया. सब लोग अपना करियर छोड़कर तन मन धन से बस लग गए कि कुछ अच्छा कर रहे हैं. लेकिन ये लोग बहुत ही निहायत खुदगर्ज, बदमाश और भ्रष्ट लोग थे. और भ्रष्ट हर तरीके से थे लोग. पैसा तो एक चीज है, उसका तो आप देख ही रहे हैं, हर एक चीज में उन्होंने कितनी कमाई की. लेकिन मॉरली भ्रष्ट थे, जो कहते हैं ना इनकी नीयत कभी साफ नहीं थी. और ये लोग बहुत ही एक भद्दापन जो होता है ना किरदार में, वो थे. मतलब देयर वाज नो मॉरल फाइबर, नो मॉरल कंपास, नो एथिक्स. I'm joined today by a dear friend. Yes, Shazia Elmi. absolutely. I remember the launch of Land of the Gods. Yes, Quite a stir that was, wasn't it? yes, it was so much fun. And I think book launches and book readings should be interesting. They shouldn't be all academic, you know. They should have a extra factor, and the flavor of the book should come through. Also, flavor of the people, what they stand for, should be there. I think a lot of serious work can be done with ease and with fun, you know. That is exactly what you did at that book launch also. Be Yeah. it Jay or Sanjeev, Yeah, you yeah. brought the best out of them. Yes. And I think I remember a close family friend of ours, they remember you. Oh, I remember that book launch. It was Shazia who Desha really mein got- desh haryana, doodh dahi ka khana. That's it how was it you who started. made it interesting. So thank you very much for doing this with me today. Although we've covered it earlier, we know and interacted over the years about it. That's right. But I wanted to put it on record. Who is Shazia Elmi? Where is she from? What's been her अजीब journey? दास्तां है ये. कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म. So really, I mean, there's a philosophical, existential question, no? Who am I? तो वो अभी तक सवाल है और मैं लगातार पूछती हूँ अपने बारे में और अपने से पूछती हूँ सवाल कि भाई मैं क्या हूँ, क्या करने आई हूँ. और मुझे लगता है ये इसका जवाब आसान नहीं है. तो एक कुछ ना कुछ बचपन से एक एंग्स था, एक कश्मकश सी थी, एक क्वेश्चनिंग थी कि this is not all right, the way things were around me. And I think I've just been a rebel with a cause and without a pause. So it's just started when I was 14 or 15. I grew up in Kanpur in a very conservative Sunni family. My father was from Deoband. In fact, Ilmi is a khitab given to Abba by Deoband Seminary, and of course we've just inherited it. We don't do justice to it because ilm is gyan. Abba was one of those brilliant scholars who and so. But you know, I always asked tough questions. And though Abba was from Deoband, he believed in education and he knew English education would go a long way. So he sent my brothers, and I have a big family, and my older 4 brothers went to Doon School and Sherwood. एंड इससे से मैं जब होता था देवबंद में देखता था वो लाइट्स होती थी और मैं पता करता था कि इंदिरा गांधी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं. तो उन्होंने कहा वो तो डून स्कूल में पढ़ते हैं. तो अब्बा वाज अ एक्सपर्ट इन फारसी एंड अरबिक. ही वाज अ हाफिज मेनी टाइम्स ओवर. उन्होंने इमामत की है जामा मस्जिद की. अब्बा वाज दैट लेवल ऑफ अ स्कॉलर एंड आई मीन उनको बहुत खिताब मिले, उपाधियाँ मिली, पर उनकी सोच अलग थी थोड़ी. एंड आई थिंक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ माई डैड इन मी. सो एंड मुझे हम सेंट मेरीज़ कानपुर स्कूल में भेजा. तो मैं जाती थी वहाँ पे और मैं रिक्शे पे बैठती थी और अलग दुनिया हो जाती थी. कानपुर का एक चमनगंज इलाका, सब औरतें अपने बुरखे में, पर्दे में, सड़कों में बाहर जाओ तो सब जैसे होता है मुस्लिम नेबरहुड. तो निकलती थी और वहाँ पे एक बड़े मियाँ बैठे हैं जो हुक्का पी रहे हैं, वही चारपाइयाँ वैसी, और 4-5 मर्द डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, और बिरयानी की दुकानें और वो सब. तो चमनगंज की निहारी और बिरयानी बड़ी मशहूर थी. तो इन इलाकों से निकलती थी थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस. और मैं कभी क्या मतलब 13-14 साल की उम्र के बाद मैं एक चादर डाल देती थी, क्योंकि स्कर्ट यहाँ तक था, सॉक्स यहाँ तक आते थे, तो इसको छुपाना होता था. और मुझे बस एक अपने आप से भी एक नफ़रत सी हो गई जब मैं बड़ी हुई थी कि क्यों मुझे देख रहे हैं, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है. Men would just pass by, and that was and I think that decided who I was. That I just didn't want to be just a girl or just a person to be looked at. And I think that was very, very traumatic for me. And I think all girls go through that. You know, it's you suddenly a teenager, and the world just looks at you differently. And all the fun
abandon, flying kites, playing marbles, doing masti comes to an end. अरे अब तो तुम बड़ी हो गई हो, संभल के रहो. And that just was very tough for me because I was such a brat अंदर से. तो वो मुझे लगा कि उससे बहुत बंदिशें आएंगी. उससे मेरे सवाल बहुत थे. वही औरतें क्यों बुर्का पहनती हैं, मर्द क्यों नहीं अपनी नज़रें नीचे करते हैं, और ऐसा क्या है कि हम सिर्फ एक जिस्म ही रह जाते हैं. वी जस्ट बिकम बॉडीज ना. यूर अ गर्ल, यूर अ बॉय, यूर अ मैन, यूर अ वुमन. सारे के सारे स्क्रिप्चर्स ही बताते रहते हैं. वी आर दैट इन टर्म्स ऑफ एनाटमी, बट बियॉन्ड दैट हु आर वी? We all have kidneys. We all have pancreas. We have cerebrum, brainstem. We have lungs. So how come only certain parts of your anatomy should decide your aspirations, way of being, ways of thinking, ways of living, ways of interacting? How can just the anatomy be the single pivot or the on which everything else rests? So ये सवाल मैंने बहुत पहले मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे भाई और मेरे बस यही तो फ़र्क है, जिस्मानी तो फ़र्क है ना. ख़यालात भी वैसी हैं, ख्वाहिशात भी वैसी हैं जैसे औरों के होते हैं. तो मेरे हालात इतने अलग क्यों हैं, क्यों? तो ये मुझे समझ में नहीं आई बात, और मैं ये लॉजिकली सवाल पूछती रही और इसका जवाब कोई दे नहीं पाता था. सो ये आई थॉट नहीं, तो समथिंग इज़ नॉट ऑल राइट अबाउट इट. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट. एंड आई उससे कि भाई अल्लाह के आगे सब बराबर हैं. तो मैं भी सवाल पूछती थी कि जब हम लोग अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम सर क्यों ढाकेंगे, वो तो सब अल्लाह ताला ही है. तो मैं कुछ लॉजिक समझ भी नहीं आती थी चीज़ों की. आई वुड जस्ट आस्क क्वेश्चंस लाइक, आई वुड आस्क क्वेश्चंस लाइक रमज़ान में तो ज़ाहिर है सब रोज़े रखते थे. तो मैं कहती थी अब बताइए, मैं जोग्राफी का क्लास था, आई थिंक 8th में पढ़ा था. तो मैंने कहा व्लादिवोस्टॉक में कैसे रोज़े रखते होंगे. एंड आई जस्ट सेड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोग्राफी टीचर अच्छे नहीं रहे होंगे. बताते अगर तो वहाँ पे भी कैसे रखेंगे, नॉर्थ पोल में कैसे रखेगा कोई, सनराइज़ टू सनसेट 6 महीने में आप मर ही जाएंगे फिर. तो मुझे बड़े थप्पड़ भी पड़ते थे कि भैया कोई इस तरह की बातें तुम क्यों करती हो. मेरा दिमाग ओवर एक्टिव था बेसिकली, कुछ ज़्यादा ही. This was when late 70s or 80s? दिस वॉज early 80s. And India was very much going through its own crisis. Were you getting a sense of it? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में थे. Of course, very much so. In fact, the famous, my eldest sister's husband. So हमारी फैमिली तो किसी भी लेडी की अपने फादर से होती है, आपका ख़ानदान है आपके शौहर से होता है. So not immediately my family, but somebody very closely related. My eldest sister's husband was much older than me. They were like parents to me after my father passed. तो पूरा शाबानो केस आपको याद होगा. तो I was barely 13 or 12 when this whole thing started. So I knew something is not okay about it. And we had a Urdu newspaper. My father was a editor and a very senior journalist. We had our own newspaper called Siyasat Jadid, which is the oldest newspaper of North India, and it's still the oldest and the most widely circulated. You've ensured that the legacy continues. Yeah, I just felt that, and this used to happen. So अखबार आते थे तो घर में, तो बस ये था कि सब सारे भाई पढ़ेंगे. जैसे मैं जा रही हूँ, शताब्दी होती तब गोमती एक्सप्रेस होती थी, दिल्ली जा रहे होते थे, तो जैसे अखबार होते थे ना, वो सब मर्दों को दे देता था, औरतों को देते नहीं था. कहते थे आप, तो मैं लड़ती थी. सो दैट वाज माय मोमेंट, माय दैट इब्सन मोमेंट ना, डॉल हाउस, दैट मुझे भी अखबार पढ़ना है, मैं भी पढ़ूंगी. सिंस आई वाज 10, 11, 12, my favorite thing was watching this. So I remember that. And Abba was a very well respected. Abba was a sort of person जो Sikh riots में निकलते थे और कहते थे कि ये गलत हो रहा है. But he would spoke for everybody. So he was a very different sort of a person. And so everybody, सारे CM, मैं भी जाती थी. So as a kid I've gone to Lucknow all the time, Bahuguna ji, as a little kid. So I know that world. तो वो मेरे दिमाग थी. न्यूज़ आता था, तो वो आता रहता था, उसमें खबरें आती रहती थी रात भर. आई वुड हेल्प माई डैड. तो मेरा दिमाग उसमें रहता था. सो आई वॉज नॉट अ वेरी typical. Vajpayee ji had a close connection in Kanpur. Yes, Former President Ramnath Kovind ji. Yes, absolutely. तो बहुत, और तो वो बहुत ही अजीबोगरीब दौर था. एनडी तिवारी भी थे और सब लोग रहे. तो मैं बचपन से वो देखती थी. और फिर अब्बा, क्योंकि उर्दू का अखबार, फिर हमारी सबसे बड़ी बहन. तो जब मैं मेरे ख्याल से 6 साल की थी जब आर भाई बाजी की शादी हुई, तो फिर वो पूरा मैंने देखा, वो दौर भी पूरा. और आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन स्कूल एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड टू हियर. मतलब स्कूल में भी सेंट मेरीज कॉन्वेंट में 9, 10 तक और भी मुस्लिम गर्ल्स होती थी.
10वीं के बाद उनकी शादी हो जाती थी, और ये कॉन्वेंट स्कूल था, तो 11th और 12th में कोई और मुस्लिम लड़की भी नहीं थी वहाँ पे। तो वो भी मैं सोचती थी कि क्यों जल्दबाजी है शादी की, आई सो ऑलवेज सी दैट। और उनसे भी मेरी लड़ाई झगड़ा होता था। आई रिमेंबर आई वाज 9th और 10th की, भाई क्यों शाबानो केस में। तो तब से मेरे फंडे बड़े क्लियर हो गए। हाँ, तो और अब्बा शाबानो टाइम आई रिमेंबर लॉट्स हैपेंड, मतलब जाहिर है वो इतना। you were perhaps in your late teens. No, I was in my early teens. I was 12 or 13. ये तो 85. शाबानो केस हाँ, ये तो the whole thing continued from 82 to 85. So barely 10. I was barely 10 what years was old. happening, and 80 to 85. if you could yeah. recollect and how that journey has been, It was because Haq very, is it was also very tough. It was very tough. Also, my father कोई उर्दू अखबार चलाते थे, और पर आरिफ भाई साहब की वो पूरी बात थी, एंड इट वाज वेरी क्रेजी। वी वो ऑलवेज थ्रेटेंड। हमारा स्कूल जाना बंद हो गया था, लोग घर जलाना चाहते थे हर वक्त। वो था क्योंकि सियासत अखबार ने इस फैसले को किया था। और अब्बा तो आलिम थे, अब्बा तो उर्दू ऐसे मतलब अरबी, और वो तो कुरान शरीफ के बारे में अब्बा तो सबसे बड़े एक्सपर्ट थे। बड़े बड़े नामों के साथ अब्बा का नाम आता था। और अभी भी आप देखेंगे, आप किसी से भी पूछिए कि इसाक इल्मी साहब कौन थे, तो उनकी इतनी इज्जत है। तो मुझे लगता है मैं सब्जेक्ट पर बोल लेती हूँ क्योंकि मैं एक मौलाना की बेटी हूँ, और मौलाना भी इसाक इल्मी साहब, जिन्होंने बाकायदा हमेशा एजुकेशन की बात की है। मैं इतने अभी भी IAS ऑफिसर्स को मिलती हूँ जो कहते हैं कि आपके फादर ने जो तालीम की बात की है, वो कहते थे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, वो हमेशा उन्होंने बात की है। इकरा की बात अब लोग कर रहे हैं। इकरा में जो पहला वर्ड है कुरान का, रीड। सो ही वॉज इन कम्प्लीटली, सो दैट्स द डैड आई हैव नोन। एंड ऑफ कोर्स इस पर इजाफा एक तरह से आरिफ साहब जो हमारे फादर फिगर हैं। मतलब आप सोचिए, मैं 6-7 साल की थी जब हुई। तो ये शाबानो के 80 to 85 या 10 to 14 that was very young, but जाहिर है तो वो भी था। और क्योंकि अखबार था, आरिफ भाई साहब बाजी की तो खैर अलग ज़िंदगी थी, लेकिन हम लोग बहुत ये चमनगंज कानपुर में रहना, जहाँ पे आपकी अम्मी भी बुरखा पहनती हैं और आपकी खाला सब पहनती हैं, आपकी मुआनी सब पहनती हैं, और उसके बीच में रोज़ाना स्कूल जाना, कॉन्वेंट में एक अलग दुनिया में चले जाना, और वहाँ पे आप शर्ट और स्कर्ट पहनकर आप निकलना घर से, तो एक वो अलग ही दुनिया थी। मतलब वन वाज बैटलिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़, जो मुझे लगता नहीं लड़कियों को करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोझ होता है। आई फेल्ट लाइक अ कुली सो मेनी टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे आपको एक अच्छी बेटी बनना पड़ता है, अच्छे मुसलमान, और आपको उसमें आना पड़ता है। आप स्कूल में जाते दुनिया अलग हो जाती है, रास्ते में आप घबरा के जाते हैं ऐसे, और लगता है किसी और दुनिया में आ गए। घर में कुछ और है, एक 4 दीवारी है, पर्दा है, और आप यकीन नहीं करोगे अर्जुन, यू विल नॉट बिलीव दिस। जैसे हम लोग कहीं गए और स्टेशन से उतर कर घर जा रहे हैं, तो स्टेशन में तो उतरे ऐसे, दुपट्टा ऐसे है, लेकिन जैसे घर पास आने लगता था, मतलब इलाके से ही बिना सोचे हुए मेरा दुपट्टा ऊपर आ जाता था। इट वॉज जस्ट कंडीशनिंग, यू नो, इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स की ये दिस इज़ द राइट वे टू बी, दिस इज़ हाउ आई ग्रो अप। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सर्टेन इश्यूज़ एंड व्हेन आई स्पीक नाउ, एंड वो मेरा है उसके वजह से, और वो जो एक गुस्सा भी है मेरे अंदर, और मैं चाहती नहीं, जो लोग कहते हैं ना गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने गुस्से को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। मैं सब बच्चियों से भी कहती हूँ, अपने गुस्से को जाने ना दो। जो गुस्सा आता है, जिस समाज आपको ट्रीट करता है, जिस तरह से आपके पिताजी के साथ किसी ने बदतमीज़ी की, आपकी अम्मी के साथ, आपकी माता पिता के साथ, या कोई भी वजह हो, कास्ट रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड, आप हमेशा भूलिए, क्योंकि वो गुस्से को आप अगर ज़िंदा रखेंगे तो आप कैटलाइज कर सकते हैं उसको। दिस विल बिकम लाइक अ मशाल यू कैरी। एंड मैंने उसको ज़िंदा रखा, वो कायम रहा कि क्यों ऐसा होता है और क्यों चीज़ें थोड़ी आसान नहीं हो जाती बच्चियों के लिए। तो दिस हैज़ बीन माई थिंग। आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ द लिटिल शाजिया being 13, wanting to speak and not getting a chance, being told. But you never stopped speaking. My God, non-stop. But tell me this, since then, since the Shahbanu days, as the मुसलमान समाज के अंदर महिलाओं का जो रोल है या उनके जो इम्पोर्टेंस है, चेंजेस क्या आए हैं? क्या इतना सिग्निफिकेंट चेंज आ गया that it's मुझे लगता है more needs to be done? मुझे लगता है कि उस दौरान से अब तक बहुत सी बातें आई हैं, और कुरान शरीफ में भी क्या है और क्या नहीं है, इन बातों का भी खुलासा हुआ है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे लोगों ने, मौलाना वहीदुद्दीन जैसे लोगों ने ये रास्ता खोला है, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो कुरान शरीफ भी नहीं है। और इकरा मतलब कि आप खुद पढ़ें। तो ये जो बीच में लोग आ गए हैं ना, अल्लाह ताला हमारे बीच में, या फिर ईश्वर और आपके बीच में, तो उन लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा उनके साथ में मैंने एक मोर्चा खोल रखा है कि आप कौन है बताने वाले, और आप सही भी नहीं बता रहे हैं। अब ट्रिपल तलाक को लेकर कितने सालों से कांग्रेस हिल नहीं पा रही थी।
सारे आलिम फाजिल लोग या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, सारे दीन के ठेकेदार जो थे, ये गलत है, धर्म के साथ हस्तक्षेप है, दखल अंदाजी है, वो कुरान का हिस्सा ही नहीं है। तो आप सोचिए यहाँ पे राजनीति और पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा पूरी तरह से कहना चाहिए सब लोग उसमें इतने मुलव्वस हैं और इतने ज़्यादा परमिएट हो गई है कि देयर आर मुस्लिम लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, members of the All India Muslim Personal Law Board who are ready to go against the word of Quran. Just to keep themselves safe and protect themselves. Yes, and just to be vote collectors and contractors for the so-called secular parties. Think about it. मतलब आप मुसलमान वोटर्स को वर्गलाने के लिए और पॉलिटिक्स के चलते आप कुरान शरीफ के भी खिलाफ जाने के तैयार हैं। ये फिर कैसे मुसलमान हुए? इससे अच्छा तो हम ही हैं। और आप सबको जज करते रहते हैं, ये बच्चा मुसलमान नहीं है, वो अच्छा मुसलमान नहीं है। मतलब आप तो चाहते हैं मुसलमानों की जो तादाद बढ़े, लेकिन आप सबको कहते रहते हो यू नॉट मुस्लिम, यू नॉट मुस्लिम, यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट गुड इनफ, यानी कि आप तो रिड्यूस कर रहे हैं। बट फिर क्या मतलब ठेकेदार कौन बने बैठे हैं? हु डू यू थिंक जिनके हाथ में इतना और समाज क्यों समझ नहीं पा रहा है, समाज क्यों नहीं देख पा रहा? क्या ये एजुकेशन का ना पहुंच पाना? ये बिल्कुल है। और ये जो एक पूरा एक वहाबी इन्फ्लुएंस आप इसको कहिए, या जो पूरा हमने मुसलमान समाज ने पूरी तरह से एक आउटसोर्स कर दिया है रिलीजियस स्टडीज़ को, और अलग अलग जगह में जो अलग अलग मौलाना हैं या इमाम हैं, वो कुरान शरीफ से हटकर मुख्तलिफ जो हदीस हैं उनका हवाला दे रहे हैं। भाई हदीस तो सही बुखारी की हैं, बहुत सारी हैं, और उसके वास्ते में पता भी चला है कुरान शरीफ के अलग अलग के मायने हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशंस हैं वही इतने अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिपल तलाक तो है ही नहीं कुरान शरीफ में, बुरखे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है, जिलबाब का जिक्र है, मॉडेस्ट ड्रेसिंग है, वो है नहीं, लेकिन सब मुसलमान कर रहे हैं। अब ये तो मैं क्या बोलूँ इसमें, मतलब अकल बड़ी की भैंस नहीं, पर इसके आपके हरियाणवी उसमें आ जाती है। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, आई कांट अंडरस्टैंड। जो चीज़ कुरान शरीफ में भी नहीं आप करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको सच्चा मुसलमान बनना है, क्यों? अच्छा एक बात बताइए, मुझे इससे दिक्कत है, आप कुरान शरीफ की बात हमने कर ली, अब मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने मुसलमान भाई बहनों से, और मैं खुलकर ही बोल रही हूँ। आप कोई भी गैदरिंग में जाएंगे, मुस्लिम गैदरिंग में, चाहे वो शादी ब्याह हो या मांझा कहते हैं जब लेडी संगीत जिसमें आपको बोला जाता है, जिसमें, और या भी कोई भी मीटिंग हो, सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है सिर्फ, और उसमें ज़ाहिर है आपको आरएसएस भाजपा को गाली बकनी है, चलिए बक दीजिए आप, उसमें आपको खुशी मिलती है। और या तो किसने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, किसने कितनी नफलें पढ़ी हैं, तराबी पढ़ी कि नहीं। मतलब मैं चाहती हूँ मुस्लिम समाज में कि लोग बात करें स्टार्टअप्स की, फिनटेक की, किसने कितने मास्टर्स प्रोग्राम करे हैं, कितनी गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा लिया है, उसके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। तो ये इसको बदलना है। भाई अपनी नमाज़ों की बातें करो, उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल रहा है। आप नमाज़ पढ़ो जितनी आपको पढ़नी है, आप दिल से पढ़ो, अल्लाह ताला को मानो, लेकिन ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी क्या सिर्फ रिलीजियस और पॉलिटिकल है? व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी? व्हाट अबाउट योर सोशल आइडेंटिटी? व्हाट अबाउट योर कल्चरल आइडेंटिटी? व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी? मतलब मुझे बहुत तकलीफ इस बात से। बट इज इट डेलिबरेटली लाइक दिस? मतलब क्या इट्स ऑलवेज लाइक दिस? मैं जहाँ जाती हूँ मतलब इसी की बातें होने लगती हैं। या तो हार्डकोर पॉलिटिक्स होगी कि भाजपा को तो गाली बकनी है, और किसी ना किसी तरह से जो भी भाजपा के खिलाफ बोल रहा हो बस उसको अपना हीरो बना लेना है, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे वो राहुल गांधी हो, जानते हुए कि उन्होंने कुछ किया नहीं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को उन्होंने गड्ढे में रखा है, हमेशा अंधकार में रखा है, जहालत में रखा है, बढ़ने नहीं दिया। ये जानते भी हैं कि क्या हालत है, लेकिन तब भी जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि थोड़ी बहुत तो अकल ज़रूरी है। तो मुझे ज़्यादातर आई थिंक के मतलब मौलानाओं ने बस फैसला किया कि सबको अनपढ़ ही रखना है। हाँ, सबको इसी में मसरूफ़ रखो, ये सोच आगे ना जाए, इसी में रखो हर वक्त। तो मतलब आप में कोई दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है, हम सब लोग को मिली, पर दीनी तालीम के साथ जैसे कहते हैं ना दुनियावी उलूम। अच्छा आप ये बताइए मुझे, इतने मुस्लिम लीडर्स हमारे देश में अलग अलग मुख्तलिफ पार्टीज से, और सब भाजपा से तो बड़े सवाल पूछते हैं कि कितने मुस्लिम लीडर्स को आप टिकट देते हैं। बाकी पार्टियां तो देती आ रही हैं। अब आप बताइए उनमें से आप पता कीजिए आप, मेरा ये आपको एक चैलेंज है कि हाउ मेनी ऑफ दीज फॉर्मर मिनिस्टर्स, प्रेजेंट MLAs, प्रेजेंट MPs who are Muslims, how many of them have children who go to madrasas?
तो अपने बच्चों को तो आप भेजेंगे। अखिलेश जी तब बहुत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं क्या सीख कर आए वहाँ से, लेकिन जो भी है वो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है, मदरसों की बात करते हैं, वहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप मदरसों का अगर मॉडर्नाइजेशन की बात हो, अंग्रेज़ी पढ़ाने की बात हो, साइंस और मैथ्स पढ़ाने की बात हो, चलिए अंग्रेज़ी से दिक्कत अगर किसी को है तो तब वहाँ पे वो पढ़ने नहीं देते हैं। यानी कि एक पूरा लीडरशिप है, एक मुस्लिम लीडरशिप, जो जानबूझ के मुस्लिम बच्चों को साइंस, मैथ्स और ऐसे सब्जेक्ट से अलग रख रही है, जिसके चलते वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए कॉम्पिटिटिव। ना बेचारा बैंक में आ पाएगा, ना बेचारा आर्मी में जा पाएगा, ना बेचारा पुलिस में जा पाएगा। आप सोचिए, बच्चा है बच्ची, ना मेडिकल कर पाएगा। तो आप क्यों करना चाहते हैं? ये तो आप जुल्म कर रहे हैं। ऐसा जुल्म तो किसी ने नहीं किया होगा, और आप अपने ऊपर कर रहे हैं, उनसे आप वोट भी ले रहे हैं। तो मुझे इसका बहुत है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठाती रहती हूँ, तो ये मेरा बहुत सालों से है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसा नहीं कि सारे मदारस ऐसे हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छे भी हैं। और अब मैंने तो देवबंद में भी बाकायदा डेस्कटॉप पब्लिशिंग पढ़ाई जाती है, और ये सब ये है। भी इंटरेस्टिंग है कि अब्बा देवबंदी हैं, जहाँ से वहाँ भी मतलब सेंट्रिक है सारा थॉट प्रोसेस, पर वहाँ पर रहते हुए उन्होंने इंश्योर किया कि अंग्रेज़ी एजुकेशन मिले आपको, मॉडर्न एजुकेशन मिले। क्योंकि सब कुछ यहाँ पे है, सोच पर है। दुनिया आपको कुछ भी बता दे, आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर सिर्फ वही है। चाहे आप और मैं बता दूँ, मेरे भाई डून स्कूल के पढ़े हुए हैं, पर वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, और बिल्कुल भी जहाँ तक राइट्स हैं औरतों की, जिस तरह से उन्होंने बहनों को अपने ट्रीट किया, और मैं तो कहूँगी परेशान तक किया। अब्बा तो बहुत ही रिफाइंड थे। तो ये कहने की बात है कि आप अंग्रेज़ी बोलकर बहुत आलिम फाजिल बन जाएंगे, ये भी हमारे इंडिया में एक मिसकंसेप्ट है। कुछ अंग्रेज़ी से नहीं रखा है, आपकी सोच और आपके ख्याल क्या हैं, ये सिर्फ वो है। मैं बताऊँ आपको, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। Besides one brother, other brothers were so tough and regressive. All the rules for different for boys. टेल मी दिस। So I'm telling you complexities. हाँ, जो मोटा मोटा हम लोग सोचते हैं ना, हमें उससे निकलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, कॉन्शियसनेस अपनी बढ़ानी चाहिए। नहीं, पर क्वेश्चन यहीं पर आता है कि क्या You with me, ना? You understanding I'm me? absolutely with you. I totally understand what you're saying. पर क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि शायद मौलानाओं ने या मुसलमान समाज के अधिकांश लोगों ने, या जो ऊपर बैठे हैं टॉप लेयर पे, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस देश के अंदर मुसलमान बहुल्य करना है, आपको संख्या बढ़ानी है मुसलमानों की, और अगर वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, अगर साइंस जानेंगे, अगर वो मैथमेटिक्स जानेंगे, फिजिक्स जानेंगे, या क्वेश्चन करने लगेंगे, तो शायद टफ हो जाएगा उनको उस दिशा के अंदर ही परस्यू करवाना। देखिए, Do you think that could be the case? yeah, see, the case is control, the case is political control. डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना फ्रीडम है। तो अगर आप मुसलमानों के मुखिया बन गए, या चौधराहट आपकी वहाँ मिल गई आपको, और आपने बड़ी वक्फ की ज़मीनें वगैरह कर ली, और आपका खुद का रुतबा बन गया, आप उस रुतबे को क्यों छोड़ेंगे? और उस रुतबे के चक्कर में ऐसी पार्टियां हैं जो आपको बुला लेंगी, आपके घर में किसी को एमपी बना देंगी, किसी को टिकट दे देंगी, और आप जानते हैं कि इससे हमारे इतना रसूख मिलने वाला है, हमें इतने नंबर्स को पटा के रखना है, जिस तरह से भी हम पटाएं और रखें, और वो हमको वोट देंगे। तो हम क्यों उसे बदलना चाहेंगे? आप बताइए। आप इस जगह होते आप भी नहीं बदलते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि कंट्रोल है, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, बिकॉज द पार्टीज आपके पास आएंगी, 2-4 मौलाना को स्टेज पे बिठा देंगी। आपको याद है भी, तेजस्वी जी एक मुसलमान को बैठा के लेके गए थे टोपी, तो वो टिपिकल आप दिखा दें एक बार, बस उससे आपको वोट कन्वर्ट कराना है। मतलब इतना आसान कर दिया है। इसीलिए बीजेपी ने सवाल पूछा, और मुझे लगता है बहुत शानदार सवाल था, और कि भैया आप सब जितने मुसलमान हैं उनकी संख्या के हिसाब 18% के हिसाब उनको बनाओ तुम सीएम कैंडिडेट, है ना? या डिप्टी सीएम। आप तो सबको बना रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बना रहे हैं। और ये मुसलमानों को सोचना होगा। भाई, मैं तो अपनी कम्युनिटी से कहती हूँ कि तुम बिला वजह भाजपा से नफरत क्यों कर रहे हो? सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज गवर्नमेंट की स्कीम में अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, कम्युनिटी, मज़हब और परसेंटेज और बेनिफिशरीज, एक आप चार्ट बनाइए, और आप क्या देखेंगे? सिर्फ 14% हैं देश के मुसलमान अभी लास्ट सेंसस में, जो बहुत पुराना हो चुका है, 14 से 15। और जो बेनिफिशरीज देखेंगे, चाहे मुद्रा हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे सैनिटेशन का पूरा हो, जो टॉयलेट्स हैं और इज़्ज़त घर जिसे कहते हैं वो बनाए गए हों, आप उसमें देखेंगे 32 to 38% बेनिफिशरीज हैं। तो परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब वो थे। तो ऐसा भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं।
पर क्योंकि सबसे ज़्यादा हकदार वो थे, और हकदार क्यों थे वो इतने ज़्यादा? क्योंकि उनको इतना गरीब रखा गया था। और गरीब किसने रखा है? इन सब पार्टियों ने वही रूल कर रही थी। ज़रा सोचिए आप, मुझे ये समझ में नहीं आती कितनी बुनियादी चीज़ है। यू डोंट हैव टू बी सम जीनियस टू फिगर दिस आउट। तो काश इसकी नॉलेज का ये पर्कुलेट हो जाए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सारे आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस देखिए, सबसे कम रहे हैं। मैं तो कोट भी नहीं करूँगी, राजेंद्र सचर कमेटी हज़ारों बार उसकी बात हो गई है। आप इलाकों में जाके देख लीजिए, इतना बुरा हाल है। तब भी तुम जब उनको सेक्युलर कह रहे हो, सेक्युलर कह रहे हो। सेक्युलर क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप वो मुसलमानों की बात कर लेते हैं 2-4 पार्लियामेंट में, खुद अपनी तो जेबें भर लेते हैं। वो बड़ा आसान तरीका हो गया अखिलेश के लिए, तेजस्वी के लिए, उनके फादर्स की वजह से। कॉम्बिनेशन की बात करो, मुसलमानों को दो नहीं, कुछ भी पास बिठा के रखो, गाली बकते रहो बीजेपी आरएसएस को, ख़त्म कहानी। केजरीवाल तो इस बात को कहते भी थे, उनका तो एक ऑडियो लीक हुआ था, तो मैंने तो बहुत बार सुना है। मैं कहती थी हम लोग क्या लिख रहे हैं इसके लिए, हम लोग, क्योंकि हम लोग अन्ना हज़ारे मूवमेंट से फिर एक पार्टी बन गए। तो फिर ये एक सोच आई उसके अंदर कि भाई अब तो मूवमेंट भी हम लोग, अब तो पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं। अच्छा, उसकी भी अलग कहानी है। उसकी कहानी तो और दिलचस्प है, वो सेकंड फेज में लेंगे अभी। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं, इसी से कंटिन्यूएशन है इसको। आप मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहते थे, अरे शाजिया छोड़ो मुसलमानों का, मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, सिर्फ गाली बक दो मोदी को, बीजेपी को, वो अपने वोट दे देंगे। तो मैं कहती हूँ मुसलमानों से, भैया अपनी अकल इस्तेमाल करो। तुम्हें क्या लेना देना कौन जीत रहा है कौन नहीं, तो अपना देखो ना, अपने घर का हाल देखो। तुम क्यों जाकर दुआएं मांग रहे हो कि भाई मोदी हार जाए और अखिलेश भैया जीत जाएं? अखिलेश भैया के जीतने से तुम्हें क्या मिल रहा है? ये मैं कहती हूँ। तो ये आर्टिफिशियल, जैसे मुसलमान समाज के अंदर भी आपका कहना ये है कि हिंदुओं को और भाजपा और आरएसएस को एक दुश्मन बस थॉट प्रोसेस के अंदर बना रखा है ताकि पॉलिटिक्स चलती रहे सबकी। बिल्कुल। अच्छा, आपको बड़ा बुरा लगता है कि अगर भाजपा हिंदू वोट्स की बात करती है, कंसोलिडेशन की बात करती है ना? बुरा लगता है। पर आप मुसलमान वोट आपको चाहिए, इनको हिंदू वोट चाहिए, तो कौन सेक्युलर है कौन कम्युनल है बताइए आप? मतलब इट्स वेरी बेसिक फॉर मी, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मैं उनसे डीप जाती हूँ कि हुआ क्या, बताइए क्या भाजपा ने आपको बुरा कर लिया है, आरएसएस ने क्या बुरा कर लिया है? कोई जवाब नहीं होता। और गुजरात दंगों की कितनी बात हुई है, हम सब जानते हैं क्या क्या हुआ है, एसआईटी हो, हाई कोर्ट के जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के हों, लेकिन आज तक इस पूरी बड़ी कौम ने, होमोजीनियस नहीं है, केरला हो या फिर और जगह हो, या बिहार हो या यूपी के मुसलमानों ने कभी पूछा है मलियाना मैसेकर के बारे में, हाशिमपुरा के बारे में, नेल्ली के बारे में, भागलपुर के बारे में, गुजरात के दंगे जो माधव सिंह सोलंकी के वक्त में हुए थे, कांग्रेस के वॉच में जो क्या क्या दंगे हुए हैं, कोई पूछता नहीं है। लगता है देश में एक दंगा हुआ है गुजरात का। मतलब ये तो हद है बेवकूफ़ी की, मुझे समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल आत्मघाती है, मतलब आ बैल मुझे मार, मतलब इतना क्यों बेवकूफ़ कोई बनना चाहेगा? और अच्छा, वो बना रहे हैं बेवकूफ़ आपको, ये सारे झूठ मूठ के फर्जी सेक्युलरिस्ट, और आप बन भी रहे हैं। मेरी तो ये मुहिम है। नहीं, पर इसके साथ साथ डू यू थिंक देयर इज एन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बिहाइंड इट? ऑफ कोर्स देयर मुसलमानों इज। को पूरा का पूरा बस उसी तरफ में बिछाए रखता है, या गोदरा ही करते रहें और कुछ बात ही ना हो, पर क्योंकि you know बात सच आपने में बड़ी वाजिब गई, क्या- 2 दशक से ऊपर हो गए। आज भी अगर कुछ भी बात है, अरे मोदी ने गोदरा, दुनिया भर की लिटिगेशन हो चुकी है, कमिटीज हो गई, पैनल्स हो गए जिन्होंने फ्री कर दिया, बट फिर भी उसी को टॉय किया जाता है, उसी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आरएसएस या भाजपा के खिलाफ आपको एक सपोर्ट रैली करना है। But can I tell you something, Arjun? You will not blame the Muslims for it, or even Muslim leadership. You know who you blame? The so-called leftists, जिनका एक पूरा दबदबा रहा है एकेडेमिया में, मीडिया में, और उनको अनब्राइडल्ड पावर था टू कंट्रोल द नैरेटिव, और इसी के उनको सारे रसूख मिले हैं, पावर्स मिले हैं, पर्क्स मिले हैं, सारे के सारे। आई मीन नेहरू जी के वक्त से अब तक, चाहे मनमोहन सिंह जी तक, वो उनका क्या एक्सेस रहा है उनका हमेशा। और मतलब गोदी मीडिया ही औरों को कहते हैं, सबसे बड़े गोदी, मतलब यहाँ बैठने वाले तो वो थे, सब कुछ ले लिया इन्होंने। तो इन्होंने सिखाया, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया मुसलमानों का, सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमान लीडरशिप ने नहीं किया होगा इतना, वो तो और नैरेटिव इन्होंने पैदा किया। तो जो इंटरनेशनल नैरेटिव वो जो है, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी कोई बेटियां बुरखे उरखे नहीं पहनेंगी, वो तो आप देखिए, लेकिन मुसलमानों के बुरखे के लिए तो बड़ा लड़ेंगे। हो बड़ी दिक्कत होगी। मतलब मुझे समझ में, अच्छा ईरान में औरतें बुरखा तो उनको तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिया में बुरखे पहन कर औरतें बोलेंगी, जो बड़ी आलिम फाजिल हैं, कि या दिखाती हैं अपने आप को कि भाई हम विद बुरखा, बीजेपी कांट फॉर। अरे बीजेपी नहीं करी थी, कर्नाटक एक्ट था एजुकेशन का, वो प्राइवेट था, पर कहानी बना दी। वो कहानी क्या बनाई?
हिजाब बैन, बुरखा बैन था भी नहीं, उस प्राइवेट स्कूल का मैटर था। जैसे मेरी इस कॉन्वेंट गई तो मुझे स्कर्ट पहनना था, यूनिफॉर्म था। इस एडमिशन का मतलब का था, अंडरस्टूड था कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसे ही यूनिफॉर्म होगा। कंफर्टेबल नहीं था मेरे लिए या हमारे घर वालों के लिए, सुनना पड़ता था सबको, लेकिन करती थी मैं। अब्बा ने हिम्मत की, इसलिए इस ऑल अप टू, मैं मुसलमानों से कहती हूँ कि जो फादर का रोल होता है ना, बहुत बड़ा होता है। मैं यंग मुस्लिम से कहूँगी, एज यंग फादर्स with little girls and daughters, you have to speak for them. Mothers can do very little. हम कह तो सकते हैं उनके लिए, पर उनके एक लिमिटेड रोल होता है। यंग मुस्लिम फादर्स शुड गो आउट देयर एंड आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ सानिया मिर्ज़ा's फादर। सोचिए, आई एम सो प्राउड ऑफ सोफिया कुरैशी's फादर। अब्बा बहुत जल्दी चले गए मेरी ज़िंदगी से, लेकिन मेरे लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िंदा है तो अब्बा हैं। अब मैं 20 ही साल की थी, लेकिन अगर वो नहीं होते तो क्या होता। तो एक फ़ादर का रोल कितना ज़रूरी है एक मुस्लिम बच्ची के लिए। वो लड़ सकता है आपके लिए, वो लड़ेगा। भाइयों का रोल कितना ज़रूरी है। एक कमाल का पॉइंट बोला आपने कि इस्लामिस्ट और लिबरल्स वो दोनों इकट्ठे हुए हैं जो बाय नेचर इकट्ठे हो नहीं सकते, बट दे हैव गॉटन टुगेदर अगेंस्ट द लीडरशिप इन इंडिया। इट्स सो फनी। अरे रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस कहते कहते वो रिलीजन ही ओपियम की तरह करा रहे हैं मुस्लिम समाज को। ये हो क्या रहा है, मतलब नोबडी इज ट्रू टू देमसेल्व्स। चलो आफ्टर वक्त ने क्या क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, कैसे होगा ना। लेफ्टिस्ट कितने लेफ्टिस्ट हैं बताइए आप। अच्छा, having said that and learned that, what's been your journey? How did you get into media, and how the hell did you get in touch with this gentleman or not so gentleman called Arvind Kejriwal? देखिए, मीडिया में तो ये था कि अंदर एक मैंने बताया एक वो था कि कुछ करना है, और हमें बिल्कुल इनकरेज नहीं किया गया। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, मैं हेड गर्ल रही हूँ, ICSE ISC में टॉपर रही हूँ मैं अपने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में। दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस में मेरा एडमिशन था, मेरे से बहुत कम मार्क्स वाली गर्ल्स को था, लेकिन मुझसे कहा नहीं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाओ। सोचो, भाई पढ़ रहे हैं डूल स्कूल में सब जगह स्टीवेंस में, और मुझे भेज रहे हैं AMU। मुझे नहीं जाना था, मैं नहीं जा सकती। तो फिर बड़ी मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि मैं सेंट बीच शिमला में पढूं। वो भी एक अनदर कॉन्वेंट में लगा था, थोड़ा बहुत इस पर वो रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और नहीं तो दिल्ली जाके तो बर्बाद हो जाएगी लड़की। तो खैर लड़के बर्बाद नहीं होते, लड़के ऑलरेडी बर्बाद हैं, पर लड़की तो भैया उसको तो बहुत, कौन करेगा इससे शादी, घूम फिर कर सवाल तो ये था। तो खैर मैं सेंट बीच शिमला गई, और जो भी है वो अलग अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह थी, पहाड़ों में मुझे थोड़ा वक्त मिल गया। याद आती है शिमला की? हाँ, बहुत याद आती है। बढ़िया बढ़िया। बहुत 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 याद आती है। आई लव बीइंग देयर। और वहाँ पे भी अलग किस्म की लड़ाई थी। मैंने देखा कि जो हमारे कानपुर में और अपने माशरे में जो बंदिशें थीं, वहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियाँ अच्छे अमीर ख़ानदानों से जो पंजाब से आई थीं, उनका भी मकसद वही था। बस वो ज़्यादा थोड़ी स्टाइलिश ज़्यादा थी, पैसे वाली ज़्यादा थी, पर उनका भी ये मकसद था कि अच्छा हैंडसम लड़का मिलना चाहिए, हैंडसम हो ना हो, पैसे वाला होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने शिमला में सोचिए मेरे, और मैं बहुत यंग रही हूँ अपने इसमें। जामिया जब मैंने पास आउट किया था, जो MA का कोर्स है, तो मैं 21 ईयर्स ख़त्म ही करी थी, मैंने मास्टर्स कर लिया था। उसकी मिनिमम एज 21 थी, लेकिन जब मुझे एडमिशन मिला तो मैं 20 ईयर्स की थी। तो सब लोग मेरे क्लास में सबसे उम्र में हमसे ज़्यादा थे, तो वहाँ पे 30-35 साल के भी लोग थे। तो आई वॉज मच यंगर इवन इन माई कॉलेज। आई डिड एवरीथिंग। मुझे बहुत जल्दबाजी रही है हमेशा। तो आई एम ऑलवेज बीन इन अ बिग हरी। मुझे लगता था अभी गाड़ी ना छूट जाए, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे लोग छोड़ देंगे, आप कुछ खो जाएगा। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक very anxious and worried about getting stuck in a cage. I've been wanting to get out of cages. तो मेरे अंदर एक वो है एक्सट्रीम एंग्जाइटी कि मुझे कोई पिंजड़े में तो नहीं डाल देगा, कोई तरह के जेल में फंस जाऊँगी किसी डब्बे में। तो डब्बे को तोड़ने की आदत हो गई है। गेट आउट ऑफ वन बॉक्स, कीप गेटिंग आउट, नेवर गेट स्टक इन अ बॉक्स। तो वहाँ पे सेंट बीच शिमला में भी यही था कि भैया कोई अमीर इंसान हो, लड़का हो, बस से शादी करनी है। वहाँ पे हमने खुराफात की। आई वाज क्वाइट यंग, आई थिंक वाज 17 और 18, एंड मैंने एक शुरू किया एनलाइटन विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं डाउरी के अगेंस्ट थी। और वहाँ पे लड़कियाँ तो कहती बाय नॉट, माई फादर शुड गिव मी लॉट्स ऑफ डाउरी, ऑफ कोर्स माई फादर। तो मुझे सोचा अरे अजीब लोग हैं, मैं यहाँ पे लड़ रही हूँ, कानपुर से आए हूँ, ये लोग कोई लड़ना ही नहीं चाहते हैं। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मुझे लगा सिर्फ मज़हब का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरा एक समाज का प्रॉब्लम है। तो मैंने एनलाइटन विमेंस ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी एक फ्रेंड थी संयुक्ता, और संयुक्ता हमने, अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मेंबरशिप की कोशिश की। तो
उसकी बहुत जल्दी मौत हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि सिर्फ 2 ही मेंबर्स रहे, वो और मैं, एक प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी। तो ये हाल था, क्योंकि वहाँ पे भी कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये लड़ाई चलती रही, मतलब एक वो कि भाई हमें, हाउ कैन विमेन गर्ल्स बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द पेरेंट्स आर कलेक्टिंग मनी फॉर डाउरी। मैं कहती तुम अपने आप में काफ़ी हो, किसी ग्रूम के लिए, दूल्हे के लिए अपने आप में तुम काफ़ी हो, तुम्हें क्यों डाउरी ले जाना है? समझ में नहीं आता था। तो तब से वो सवाल पूछ रही जो सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं। सो आई वाज इन दैट सेंस लाइक वेरी I also I had a lot of curiosity. I asked questions like, why are we doing this? And I think that why took me very far. So हाँ, अरविंद केजरीवाल से तो बहुत बेवकूफ़ी थी। एक तो जर्नलिज्म इसलिए आना था क्योंकि बहुत कुछ कहना था। चुपके चुपके गई थी मैं मैस कॉम का एग्ज़ाम देने के लिए। जामिया मैस कॉम इज़ वेरी वेल नोन एंड वो इसमें बहुत ही कम होते थे, 30-35 उसमें लोग होते थे। उसमें जामिया की एक कैटेगरी थी और बाकी छोटी सी कैटेगरी थी उसकी। तो मैं किसी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी में, और आप यकीन नहीं करेंगे, आई वाज अंडर एज by 2 years from the minimum age, but I cracked it and I was 7th on the entrance list. And when I passed out, I was top of the class. So मेरा इतना determination था, and it was a very, there was my first interaction or this collision, so to speak, with the leftist. मैं थी हार्डकोर मुसलमान कानपुर से, अब्बा अम्मी की बेटी। बातें मेरे बारे में और मुसलमान समाज के बारे में वो लोग कर रहे थे। वो लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं सिगरेट नहीं पी रही हूँ, कि मैं उनके साथ शराब नहीं पी रही हूँ, कि मैं जॉन पॉल सार्tre, सिमोन दे बुवा की तरह एक एग्जिस्टेंशियल चॉइसेस नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा तो अजीब-ओ-गरीब दुनिया है, ये हमारे बारे में बोलते हैं, हम इतना नहीं बोलते हैं आरएसएस के बारे में जितना ये बोलते हैं। तो एक नफ़रत पैदा कर दी गई है हमारे यहाँ, आरएसएस, बीजेपी, और हमारे दिल में नहीं थी, अब्बा के दिल में तो कभी नहीं थी। अब मुसलमानों में कॉन्शियसनेस आ गई है ज़्यादा। मैं बता रही हूँ, हम कितने सालों की बात कर रहे हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s एंड अर्ली 90s। नहीं था। और हाँ, थोड़ा बहुत था क्योंकि वो सफदर हाशमी का दौर था और वो सब था, स्ट्रीट प्रोटेस्ट थे, लेकिन ये नहीं था। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड बाय दिस, यू नो। But how did this happen? Arvind Kejriwal interaction, how did this happen? देखिए, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और एक होता है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। मैं बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट। But was it because of Anna Hazare and the entire crisis that the country was facing? मैं न्यूज़ एंकर थी, एक बहुत बड़े चैनल की डेब्यू एंकर रही हूँ और बहुत ही शानदार वो दौर रहा है। पर मुझे लगा कुछ और करने की ज़रूरत है और मैं अपनी बीइंग को सिर्फ एक मुस्लिम महिला के तौर पर नहीं देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्टिसिपेट करना हर एक चीज़ में। और रोज़ाना खबरें क्या होती थी? करप्शन की। सारे घोटाले तभी तो हो रहे थे, मैं उसी घोटालों की कवरेज होती थी हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा इसमें क्या किया जा सकता है और परेशान रही कई दिनों तक। फिर एक मौका जब आया, जब अन्ना हज़ारे का एक छोटा मोटा मूवमेंट हो रहा था जंतर मंतर में, याद होगा आपको। तब मैं भी सोची तब आगे क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़े। किसी और चैनल में जॉब ले सकती थी मैं, लेकिन मुझे लगा कि You were working where? So I had already been a news anchor, and at that point of time, I was making the documentary that you were talking about. I had taken a break. Really? Yeah. मुझे लगा कुछ करने की ज़रूरत है और मुझे कभी लगता ना मैं किस्मत में यकीन करने लगी हूँ क्योंकि ये रास्ता यही था मेरा। इसीलिए आप पूछ रहे थे ना प्लान्स, कोई प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लान्स पूरे नहीं होते, ऊपर वाला कुछ हिला देता है आपको ऐसा कि आप कहीं और चले जाते हैं। तो खैर मुझे लगा कि आई वांट टू डू समथिंग मोर। मेरे अंदर वो था और वो बहुत से लोग बेवकूफ़ी कहेंगे, बहुत से लोग आदर्शवाद कहेंगे। तो उस आइडियलिज्म के खुमार में हम बहुत अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ बन गए। पर एक बात रही है, मतलब In all honesty, you know, a lot of people will not admit it, but I'll tell you, it was perhaps, I've been through very tough moments in my life. It's been very, very tough, my journey, and I don't let it show because I think some spiritual practices keep me going and happy. I don't allow bitterness to creep in. But I want to tell you, Arjun, it was so heart-wrenching and heartbreaking what I endured. मतलब they are the worst kind of people. अरविंद केजरीवाल को मैं क्या समझती थी? मैं राखी बांधती थी अर्जुन। दे आर सच टेरिबल, मीन, पेटी पीपल, अनस्क्रूपलस, रूथलेस हैं ये लोग सबके सब। मतलब एक दूसरे से भी चिढ़ते हैं, एक दूसरे पर डौसियाँ रखते हैं। मतलब मैं तो घबरा गई। शुरुआत में मैंने क्या सोचा था, एंड व्हाट आई वाज डिस्कवरिंग अबाउट देम वाज ऑब्नॉक्शियस। दे वर करप्ट टू द हिल्ट, दे वर प्लेइंग गेम्स, दे वर रूथलेस, मिसोजिनिस्टिक, रियली मैं क्या बोलूँ। मतलब जाहिर है
मेरी तहजीब नहीं इजाज़त देती है कि मैं कोई गाली बकूं, पर दिल तो चाहता है। उस पॉज ने रजिस्टर करवा दी। बट सो यू आर आर्ग्यूइंग अरविंद केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल, फुल फायदा उठाया। हाँ, अन्ना हजारे को बहुत बेवकूफ़ बनाया, देश को बेवकूफ़ बनाया, हम सब लोग को बेवकूफ़ बनाया। सब लोग अपना करियर छोड़कर तन मन धन से बस लग गए कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही निहायत खुदगर्ज, बदमाश और भ्रष्ट लोग थे। और भ्रष्ट हर तरीके से थे ये लोग। पैसा तो एक चीज़ है, उसका तो आप देख ही रहे हैं हाल, हर एक चीज़ में उन्होंने कितनी कमाई की, लेकिन मॉरली भ्रष्ट थे। मॉरली, जो कहते हैं ना, इनकी नीयत कभी साफ नहीं थी। और ये लोग बहुत ही एक भद्दापन जो होता है ना किरदार में, वो थे। मतलब देयर वाज नो मॉरल फाइबर, नो मॉरल कंपस, नो एथिक्स। मतलब कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑनर अमंग थीव्स, यू मस्ट हैव हर्ड इट, वो भी नहीं था। तभी वो आई थिंक स्वाति वाज कंप्लेनिंग द सेम थिंग ना। अरे अब स्वाति ने तो खैर बाद में कहा, स्वाति को तो तब तक राज्यसभा में मिल गई थी। हमारे जैसे लोगों ने जो पूरा मूवमेंट बनाया है, पार्टी बनाई है, फाउंडर्स रहे हैं, पहले दिन से रहे हैं, जब कुछ था भी नहीं। हमको तो, मेरे फरिश्तों को खबर नहीं थी अर्जुन की जो अन्ना हजारे मूवमेंट था वो कभी पार्टी भी बनेगी। अरविंद तो कस्में खाते थे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे। बच्चों की कसमें खाते थे। बच्चों की कस्में खाई, मेरे सामने खाई है। मैं गई थी अरविंद के पास, मैंने कहा अरविंद हमें पार्टी बनानी चाहिए, मैं टीवी में हर जगह बोलती हूँ, कहते हैं आप लोग इलेक्टोरल फ्रेम में आइए। तो अरविंद कहते थे नहीं नहीं शाजिया, नाम भी ना लेना, पूरी मिट्टी पलीद हो जाएगी, कहना भी नहीं, डू नॉट इवन अटर दिस शाजिया, विल बी इन, लेट्स जस्ट बी दैट, वी विल लूज आवर क्रेडिबिलिटी। मैंने कहा बट अरविंद भाई व्हाट्स रॉन्ग, वी शुड कॉन्टेस्ट। And then the man somersaulted, and he somersaults far. He would be such a great acrobat. Gymnastics में तो Olympics में सबसे आगे होना He चाहिए is था। politically too, so to say. He's an acrobat. He's a अव्वल दर्जे का gymnast. But what do you think? What is he obsessed with? Is he obsessed with power or is he obsessed with money? Power. Money is a byproduct. That's where Manish Sisodia handled the money. Okay. तो कबीर और परिवर्तन दो जो उनके NGOs थे, और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, पैसा मनीष, तो दुनिया को पता था मनीष चला रहा है, पूरी दुकान मनीष चलाते थे। अरविंद एक मॉरल हेड की तरह बैठते थे उस पर। तो तभी मनीष सिसोदिया को फंसना जरूरी था। नहीं नहीं कुछ नहीं, दोनों राजदार हैं, दोनों राजदार हैं, तो कुछ नहीं, कोई फंसना नहीं था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग गलत समझते हैं। अरविंद एंड मनीष हैव अ वेरी गुड, वो एब्सोल्युटली 100%। तभी they ensured that everybody else who played any role at all in building the party, सब बाहर, सिर्फ ये 2-3 लोग हैं इनकी चलेगी, वरना किसी हाँ की नहीं बिल्कुल, चलेगी। प्लाइंट हो, आपके बारे में कोई जानता ना हो, वो तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी अपनी शख्सियत है, आपके अपने उसूल हैं, आपकी अपनी सोच है, आप नहीं रहेंगे। प्रशांत, अच्छा मुझे इतना अफसोस होता है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी पर, कि सोचो कितने दिग्गज लोग, मतलब अपने अपने फील्ड में, जो अपने फील्ड में, अपने फील्ड में, मतलब दिग्गज। एक लॉयर के तौर पर देखिए, बड़े बड़े पीएल तो करे हैं। 2G वगैरह के मामले देखेंगे, योगेंद्र यादव का जो भी करियर रहा है, हालांकि ये दो आए जिनको वैसे कोई इतना सिग्निफिकेंट पर मुझे इन पर हैरत क्यों होती है, मैं बताऊं आपको अर्जुन, मुझे हैरत क्यों होती है, इसमें मुझे इतनी ज़्यादा मतलब एक दया आती है, दयनीय इनकी हालत है लेफ्टिस्ट की, जो कि वो जूते खाने को तैयार है। भाजपा से नफरत है, अरविंद केजरीवाल ने जूते मार के निकाला इनको। आपको पता है ना, कापस खेड़ा में जब इनका एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही थी, तब तक मैंने, आई वॉज द फर्स्ट वन टू लीव, I was the first one to join the Anna movement, and I was the first one to leave Aam Aadmi Party. Everybody stopped me, including प्रशांत जी and योगेंद्र जी, की शाजिया ठीक करेंगे, ठीक करने बैठ गए थे वो लोग, ऐसा निकाल दिया गया। ये है केजरीवाल जी और योगेंद्र यादव के लोग। बाकायदा कापस खेड़ा में मीटिंग हुई थी और बाकायदा बाउंसर्स थे। आप जानते नहीं केजरीवाल को, बर्दाश्त नहीं करना, निकालो इनको, निकालो। आई हैव सीन दैट साइड ऑफ हिज, एंड विच इज़ वाई आई जस्ट लेफ्ट। बहुत प्रोमिस की गए, मैंने कहा मैं नहीं रह सकती थी, और विभव इतनी मुझसे बदतमीजी करता था, तो दे यूज एंड देर ऑल बी वेरी नाइस, एंड आई डिड अ लॉट, आई मीन आई स्पोक अ लॉट, एंड आई थिंक आफ्टर अरविंद आई वेंट टू इंग्लैंड, दुबई, सेट अप थिंग्स फॉर देम ऑल ओवर इंडिया, जो एक थोड़ा सा, जिसको दुनिया सेक्युलर कहती है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने साथ में किया। Everybody knows that. Now Arvind can say Shazia did nothing, but the world has seen it. So I mean, I don't need to. वो तो लायर्स हैं, मतलब झूठे हैं अव्वल दर्जे के, तो वो करें। लेकिन बहुत अफसोसनाक था, उनको भी जूते मार के निकाल दिया गया। अब मैं इस बात पे अब वापस आते हैं नेशनल पॉलिटिक्स पर, वही अपने लेफ्ट और राइट और ये झूठ मूठ का सेक्युलरिज्म जो लगा रखा है। अब ये लोग जूते खाने के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल से। वैसे ही आप देखिए, अब CPM को आप देखेंगे अगर बंगाल में,
तो जूते खाने को तैयार है वो टीएमसी से, लेकिन भाजपा से दुश्मनी है। नफरत। जूते खाएंगे उनसे लेकिन नफरत करेंगे इनसे। पर मतलब अरविंद ऐसे क्या केजरीवाल नफरत है आइडियोलॉजिकल, मुझे तो लगता है कि वो फंसे हुए हैं, देर स्टक इन अ वॉर्प। पर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया, ठीक, कि एवरीबडी सीमिंगली अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त यूपीए 2 के करप्शन को लेकर एक बहुत बड़ी एक मुहिम छेड़ी। अन्ना हजारे जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते आ रहे थे, उस 70-80 साल की उम्र के एक बहुत ही भोले गांधीयन इंसान को इस्तेमाल करके पूरे देश को समझिए बेवकूफ़ बनाकर या झूठ बोलकर या एक ऐसा नैरेटिव बनाकर अपने एक तरह से चंगुल में फंसाया, ये कहकर कि हम एक नया देश, नया भारत, परिवर्तित भारत देंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। और उस वक्त लोग बाकायदा यूपीए 2 के भ्रष्टाचार से देश में त्राही त्राही मची थी। रोज़ाना ऐसी खबरें थीं। अगर अब अरविंद केजरीवाल आते, अभी मनमोहन सिंह के टाइम में तो सब था, अब देखिए अब एक भी कोई केस नहीं है मोदी जी के खिलाफ या किसी भी महकमे के खिलाफ। ये सब लगे रहते हैं ना मोदी जी के पीछे, एक केस बता दें, बता ही नहीं पाते हैं। एक मिनिस्ट्री है हमारी, आई विल गिव यू अनदर फैक्ट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 years, now close to 12, that for the first time at the center level, there has been no case of corruption found against any of the ministers, forget the prime minister, against any of the ministers, against any department. It's never happened before, and people don't talk about it. Even we in the party don't talk about it, but we should. Imagine. तो आप सोचिए, तो एक कमाल है। तो अब तो संभव नहीं था, वो टाइम था। अच्छा, पर एक और बात जो इन लोगों को, जो बहुत अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए पसंद कर रहे थे, अच्छा जब वो गाली बक रहे थे मनमोहन जी को, सारे मंत्रियों को और लालू को और फिर मुलायम सिंह यादव को और सबको, तब तो वो बहुत ही बुरे इंसान थे। तब तो वो आरएसएस के एजेंट थे, याद होगा सारे एडिटोरियल्स। ये जो सब इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बहुत जहीन महीन बातें करते हैं, सुनिए, तब तो अर्जुन देव ही इज एन आरएसएस एजेंट, बट द मिनट ही बिकेम सीएम and got into elections, and who was the main contender? Modi. Then he started abusing Modi. Then he became the darling of the media. ये मीडिया को देखिए सर, हर कोई इस पूरे वो तलाक में हर कोई अपनी रेस दौड़ रहा होता है, उसके अंदर किसी नहीं, मतलब बेवकूफ़ी की मैं बात कह रही हूँ कि ओह कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, आरएसएस एजेंट, अरुंधति रॉय जैसे लोग, हाँ सब लोग जो बहुत, और नाम नहीं लेना चाहिए पर बहुत सारे एडिटर्स हैं अभी भी लगे हुए हैं वो। तो क्यों नहीं लेना चाहिए? मतलब शाहजेब मैंने तो लिया है, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को व्हीलर डीलर बोला है, आप जानते हैं। राजदीप के खिलाफ कौन लड़ रहा है? मैं लड़ रही हूँ। एक बहुत बड़े इंटरव्यू में जब शेखर गुप्ता ने मुझे इंसल्ट किया था जिस दिन अरविंद जी जीते थे, मैंने उनको मुंह पे कहा है, भैया जो भी हो मैं व्हीलर डीलर नहीं हूँ। तो सब जानते हैं मैं किससे क्या बोलती हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। लेकिन आप ये देखिए कि इन सब लोगों का हाल देखिए। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बुराई करेगा, एक बड़ा मूवमेंट होगा, आरएसएस का एजेंट है। जब वो मोदी जी की बुराई करेगा और गालियाँ बकेगा, तब तो हमारा डालेंगे। ये उनकी इंटेलेक्चुअल सोच पर मुझे अफसोस होता है, इतनी सिकुड़ गई है। क्या, किस तरह के जर्नलिस्ट हैं आप, किस तरह के एडिटर हैं आप, किस तरह के थिंकर हैं आप, किस तरह के एनालिस्ट हैं आप, किस तरह के सिफोलॉजिस्ट हैं आप? आपकी खुद की भी अकल होगी कि आपको बस डाल दिया गया है एक वक्त में, बीजेपी इज इक्वल टू बैड, कांग्रेस इज इक्वल टू गुड, RSS evil. Why? Modi evil. Congress good. लालू प्रसाद यादव good. अरविंद केजरीवाल good. अखिलेश यादव good. ये किसने बता दिया है? ये कौन से पाठशाला में पढ़ के आया भाई? थोड़ी तो अकल होगी। इतने लफ्ज़ों के साथ आप हेर फेर करते हैं, ऐसे वर्ड्स स्मिथ करते हैं, क्या अंग्रेज़ी झाड़ते हैं, किसी को समझ में नहीं आती है। शायद अंग्रेज़ को भी नहीं समझ में आती इनकी अंग्रेज़ी। अच्छा? लेकिन अकल नहीं बढ़ पाई आपकी। इसके बाद है एक और पार्ट, जब ये अरविंद केजरीवाल सारा मूवमेंट चल रहा था और पूरा एक नॉनसेंसिकल एक तंत्र मंत्र बनाया जा रहा था देश को बरगलाने के लिए, उस टाइम पे क्या इंटरनेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल सपोर्ट कहीं से आ रहा था? वेयर वर द मनी इज फ्लोइंग इन फ्रॉम? तो देखिए, ये एक पूरा जो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वही जो पुरानी टीम है, जैसे इसमें स्वाति भी रही हैं, जाहिर है बहुत पुरानी भी रही इसमें, अश्वती थी इसमें, और सब लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स मिल गई हैं। एक ऋषिकांत कांत इनके लॉयर हैं, तो फिर उन लोग सब लोगों को वो कर दिया गया। दिल्ली की सरकार में बड़े उनको 1-1 लाख रुपए की नौकरियां, 2-2 लाख रुपए की हम लोग ही दे रहे थे उनको। तो अरविंद ने सबको एडजस्ट कर दिया। तो ये लोग जो साथ लगे हुए थे, ये क्लोज एक वो था।
तो ये लोग इस्तेमाल करना था लोगों को, बाकी लोगों को लाना था, पढ़े लिखे जो हों, अलग अलग जगहों से हों, प्रोफेशन से, उनको इस्तेमाल करना था। चलिए, लेकिन दे भी सकते। सारा पैसा यहाँ कंट्रोल हो रहा था। मनीष इनके वो थे हेड। बट बिफोर तो दे गॉट इनटू पावर, फोर्ड फाउंडेशन फोर्ड फाउंडेशन वाज देयर, आपको याद होगा। और पहले तो टिपिकली चाहे मतलब रैमन मैग्सेसे अवार्ड को जो भी मिलता है, मतलब इट हैज अ व्हाट डू वी से, हाउ कैन यू फॉरगेट, अरे पूरा सिविल लिबर्टीज़ का जो PUCL है, प्रशांत भूषण उसको देखते थे। आपको याद नहीं है कि अरुणा रॉय की टीम में बाकायदा काम किया है साथ अरविंद केजरीवाल ने, पर जहाँ जाते हैं वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ पे भाग जाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें बड़े बड़े छेद करने के लिए जाने जाते हैं अरविंद तभी शायद अभी पंजाब बैठे हैं। से बेड़ा गर्क। तो अजीब ही इंसान है, इसकी फितरत कुछ अजीब गरीब है। अच्छा, इस बारे में बताइए, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी सोशली वेरी इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। दिल्ली में प्रदूषण का क्या करना है भाई? प्रदूषण में बहुत कुछ ज़्यादा होना चाहिए, आई एग्री विथ यू। मतलब दिस इज नोटिसेबल कि इस साल जब मानसून आई थी तो दिल्ली वर्स पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में इससे बेटर मैनेजमेंट नहीं हुई पानी की। डेफिनेटली हुई है। मैं ऐसे आपसे ये बात कहूँगी कि at the level of the government, Delhi government, because I'm part of it, in the sense that a lot is being done. There were serious issues with the artificial lane that they planned, and many जहाँ पे monitoring होती थी, काफ़ी सारे वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो all that is being taken off, and I think our government is very committed. We cannot take a chance. Already आप देखिए वाटर पोल्यूशन को, आप देखिए यमुना की पोल्यूशन को, कितना काम हुआ है, मतलब इतना विजिबली काम हुआ विजिबल काम है। ये हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा मानसून आई, पहले आपको याद है क्या वाटर लॉगिंग होती थी? टू वट एवर सेड एंड डन, उस तरह के मतलब मुझे याद है अच्छी मतलब तरह 10-11 साल के ना पहली बार ऐसा हुआ है कि वाटर लॉगिंग आप मुझे कंट्रोल है, और और इस साल बरसात भी बहुत हुई है। एग्जैक्टली तो वो है। इसमें मुझे लगता है कि विंटर्स सर पर हैं बल्कि, और दिवाली के टाइम और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये भी एक आंकड़ा आया कि दिवाली के 2 दिन बाद जो डिप हुआ है पोल्यूशन, वो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि बहुत कुछ करना है इसमें। इट्स नॉट एसेंशियली ऑन आज सुबह की ये, कल सुबह के अखबार के अंदर ही ये बात थी कि पोल्यूशन में दीपावली या फिर ये इतना बड़ा कारण नहीं है, कारण बहुत और हैं जो डीप सीटेड हैं। बिल्कुल, दिवाली को आपने विलेन बना दिया है कुछ लोगों ने, है ना। वेहिकुलर पोल्यूशन, पराली कंस्ट्रक्शन, या अरे पराली की बात है, पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पहले भी नहीं कर पा रहे थे, वो अब भी नहीं कर पा रहे। देखिए there was a point when in Punjab also आम आदमी पार्टी was in power, in Delhi also आम आदमी पार्टी was in power, but nobody did anything about it। आप यकीन नहीं करेंगे अर्जुन, मेरे जो घर के लोग हैं, जाहिर है मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो हैं कम्युनिटी के लोग हैं, मैं मिलती हूँ, मैंने कहा आपको पता नहीं किसी वजह से नफ़रत करनी है, आप नफ़रत करना है जितनी कर लीजिए हमसे, भाजपा से, लेकिन कम से कम इस इंसान को तो आप वोट ना दीजिए। How about this before we close this and bring it to the last question? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के अंदर एक मुसलमानों के अंदर एक पसमानदा समाज है, शिया सुन्नी डिवाइड की भी बात की जाती है। Where does the मुस्लिम समाज स्टैंड vis-a-vis भारतीय जनता पार्टी एंड ग्रुप्स दैट आर सपोर्टिंग हिम? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पहली बार इन 10 सालों में कम से कम पसमानदा समाज की बात हुई। आपको इससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा। तो जितने भी लोग रहे हैं पावर में, वो अशराफ रहे हैं, सैयद, मुग़ल, पठान और शेख। और कभी भी आपने जो पिछड़ी जाते हैं मुसलमानों में, जिसमें वैसे ही कास्ट सिस्टम है जो हिंदुओं में है, वो रहा है। हालांकि ये भी कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत ही आगे हैं मुसलमान। तो आप यकीन नहीं करेंगे, कभी इसकी बात नहीं हुई। कभी भी पहली बार मैं देख रही हूँ कि मुसलमानों में और जो अजलाफ हैं और उन समाज की बात हो रही है, पसमानदा समाज की, और महिलाओं की बात हो रही है। तो एक जो होमोजीनियस तरीके से मुसलमानों को देखा गया था, और जिस तरह से जो अशराफ या अपर कास्ट है उन्होंने पूरा चलाया है पूरा मुस्लिम वोट बैंक को और वहाँ के देश की राजनीति को, उन सबसे हटकर मुसलमानों के हित के लिए उनको होमोजीनियस यूनिट की तरह से नहीं, बल्कि जिस तरह से वो एक्चुअली रह रहे हैं, जिनका गुज़र बसर जैसे है, सोशल जो उनका इंटरेक्शन रहता है। आप क्या जानते हैं कि मैं सैयद परिवार से हूँ, तो मेरी शादी नहीं हो सकती किसी जुलाहे परिवार का कोई हो या अंसारी हो, नहीं, कैसे हो सकती है? अरे वो तो वो हैं, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन बात होती है हिंदू कास्ट, जितने भी आप बताइए जो पढ़े लिखे इतने लोग हैं, कास्ट इज़ अ रियलिटी करते हैं, लिखते रहते हैं,
कभी उन्होंने मुस्लिम कास्ट सिस्टम की बात की है? इट इज़ एज पर्निशियस एज एनी अदर हायरार्की, वर्टिकल हायरार्की. देन व्हाई डोंट यू वांट टू स्पीक अबाउट इट? व्हाई डू यू वांट टू कीप इट हिडन? ये है चालाकी. अगर आप सच में मुसलमानों की फ़िक्र करते हैं ना, मैं इन सब लोगों से कहती हूँ, एक सब और उनके जो ऑफिशियल वो हैं स्पिन डॉक्टर्स, कि भाई अगर सच में फ़िक्र होती तो आप मुसलमानों के लिए माइक्रो क्रेडिट, स्कॉलरशिप्स, प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट और उसको रुकने के तरीके, आप इसकी फ़िक्र करते, हेल्थ की फ़िक्र करते. आप देखते हैं कि जो लोअर कास्ट मुसलमान हैं उनको इक्विटी मिल रही है. आप देखते हैं मुसलमान बच्चियों की हालत बेहतर हो रही है, ज़्यादा स्कूल जा रही हैं. मुसलमान जो माएँ हैं और उनको एक तरह से एक डिग्निटी भी मिल रही है कि वो उनके लिए शौचालय हों, इज़्ज़त घर हों. उसके साथ साथ जो बेवाओं का चाहे पेंशन हो या जिस तरह से औरतों को छोड़ दिया जाता है, भैया काजी ने कहा भी तलाक माना गया तो बेचारी कहीं जाने, आप पूछ करते. आपने तो किया तो है नहीं कुछ मुसलमानों के लिए. अब मोदी जी के कार्यकाल में जब ये ज़रूरी सवाल उठ रहे हैं और मुसलमानों के अंदर से भी उठ रहे हैं, तब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है. तब आप कह रहे हैं अरे सब मुसलमान कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ भी तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ है. अरे कैसे खिलाफ हैं? आप किसके खिलाफ थे? आप तो चंद अशराफ परिवारों के ही साथ थे ना. आप नाम निकाल के देख लीजिए आप. अर्जुन, आई एम चैलेंजिंग यू, जस्ट सी. It was only about the upper class and upper caste amongst Muslims who had political representation. They are the only ones who had. Others did not have. आप ये तो ज़रूर चाहते हैं कि भाई चाहे ओबीसी समाज के हों, हमारे यादव भाई बहन हों, उनको वोट दें, लेकिन मुस्लिम्स में जो हैं उनके आपने कितने टिकट दे दिए? कितने मंत्रियों का नाम गिना सकते हैं? MPs MLAs को नहीं है. These are very real questions. You would not find these because this is my own original thinking and my anger. And not that I'm any less Muslim than anyone else. I care. I care because it's a large community. It needs to come up. जो मुसलमानों, जो देश का फ्यूचर है वही मुसलमानों का फ्यूचर है. But do you think that's a possibility in near future? I'm going to keep working at it. मैं बिल्कुल ही committed हूँ. And you know, people keep saying you're a Muslim, what a traitor you are. Some people say it. Some people understand me for who I am. And I think most people now understand. Tell me, which other party, Arjun, would not just allow me, encourage me to speak about reform in my religion, to speak for my Muslim sisters, to speak for Quran and against Parda or all the pernicious practices? Only BJP. Well, that being said, it's been a pleasure speaking with you, and I think, like always, you've spoken your heart out. Yes. And I'm sure many people who are watching this will find great many learnings and great joy in listening to you. Thank you very much for taking out the time to catch up and have this chat. Yeah, lovely talking to you, Arjun, always. And I think we must do it a little more often because We इतने should. सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करी जानी चाहिए, पर बात करते बोल नहीं रहा है ना कोई. क्योंकि शायद कोई एक वो फियर सा बना हुआ है कि बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कौन बोलेंगे, और कौन उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल भी सकता है, कौन उस वेट के साथ और बोल सकता है, लिव्ड रियलिटी के साथ, लिव्ड रियलिटी के साथ बोल सकता है. तो अगले कॉन्वर्सेशन में हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ भी जानेंगे. But for now, we close this. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. It was great being here. Namaste.